I'd like to first of all recognize the presence of our very respected guest and the judges on the dais. Respected Professor Devinder Singh sir, who is the professor in English literature in North Campus. Please give a big round of applause to Devinder Singh sir. And I'd like to recognize also the presence of our Professor Pramod Mehra, the professor of English literature again from Indira Gandhi National Open University, and Professor Prashant Chauhan from Amity University, School of Institute of Social Science there in Amity University, and Professor Abid Hussain from Jamia Millia Islamia. I'd like to recognize his presence also, and Dr. Moitri, Assistant Professor of Political Science in Mata Sundari College, and of course none other than Dr. Chandramohan Singh Rao, our CS Rao sir from the Manki College itself in the Department of Hindi. Thank you so much sir for your kind presence, and of course none other than all the contestant participants from various colleges, particularly Delhi University and others. A warm welcome to you all in this very, very special day of celebrating National Youth Day and also honoring the birth anniversary of the greatest son of the soil, Swami Vivekananda ji. Let's give a big round of applause in his recognition. We pay tribute to our son of this great nation of India, Swami Vivekananda ji. So with these notes, today's speech competition. So I think this is a great topic. The topic, role of Indian science and spirituality for world peace. So let's now begin the great moment of the speech competition with a big round of applause. Back to Master Serin. भविष्य है विश्व का, तकनीक से बिछड़ नहीं सकते. Today's modern era solutions like COVAX initiative. I'm here to talk about how profound role Indian spirituality and science. विश्व में शांति से हम क्या समझते हैं? विश्व में शांति कब संभव है? जब G20 समिट होता है तो भारत में टैगलाइन होता है वसुधैव कुटुंबकम. मुंडक उपनिषद का यह वाक्य जो संपूर्ण विश्व में शांति, सुख, समृद्धि. Teresa remind us that peace is not something detained. Respected principal sir, to bless this occasion now, we will now proceed for the closing session of this debate, this speech competition today. Our key person to make this program today to happen here, Professor Devinder Singh sir, will give a short remarks. Devinder sir, Professor of English Literature in Delhi University North Campus. हम कहाँ से सीखे स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? देखिए, संगीत एक शब्द है. आप दो एक्सपेरिमेंट करके देखिए. फिल्मी गाने गाइए और भजन गाइए या कुछ ऐसा संगीत गाइए जो क्लासिकल संगीत है, और फिर दोनों के बाद अपनी मानसिक स्थिति को या एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके 10-20 दिन उन लोगों की मानसिक स्थिति को पढ़िए. जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं वो करिए एग्जाम्पल. तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों की चैंटिंग से दोनों उन व्यक्तियों की मानसिक स्थिति पर क्या फ़र्क पड़ा है. एक क्वेश्चनर बनाइए, पूछिए, रिपोर्ट तैयार करिए, प्रिंसिपल साहब को दीजिए.
स्पिरिट, जब आप एक पेड़ को देखते हैं, हमने बहुत एग्जाम्पल दिए कि कमल में कीचड़ खिल जाता है, वो ऊपर रहता है, कीचड़ में नहीं आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पेड़ कितने अच्छे हैं आप लोगों से, कि उनमें कितना भी गंदगी डाल दो, वो अपने फल में वो गंदगी नहीं आने देगा, आपको बहुत साफ सुथरा स्वच्छ फल देगा। उनकी जड़ में जितनी मर्जी गंदगी हो वो उसको लेगा ही नहीं, स्वयं मर जाएगा लेकिन लेगा भी तो आपको फल नहीं देगा। इस दुनिया में बहुत गंदगी है, आपके चारों तरफ, आपके अंदर बाहर गंदगी है, हम सब में है। उस पेड़ की तरह हमें वही फल, वही मीठा, वही प्रकृति, गन्ना कभी आम नहीं देगा और नीम कभी मिठास नहीं देगा। उस प्रकृति में बंध के हम जैसे हैं वैसे ही रहें और उसी तरह के कार्यों को करके अपनी पहचान को बनाए, यही स्पिरिचुअलिटी है और इसी को लेके चलें। और फाइनली मैं यूजुअली जब आप लोग मिलते हैं ना तो मेरे अंदर का एक कवि जाग जाता है, तो मैं 4 लाइनें लिख के वो बोलता रहता हूँ। हमें करना क्या है, अपने आप को दोबारा पाना है। वो कैसे? वो 4 लाइनें मैंने लिखी, वो बोलता हूँ कि मिट्टी हूँ, मिट्टी में अपना वजूद तलाशता हूँ, वक्त की रेत पर मिटे कुछ निशान तलाशता हूँ, मैं राम बनूं या रहीम मेरे बस की बात नहीं, इसलिए रोज अपने भीतर अपने आप को तलाशता हूँ। थैंक यू वेरी मच। And what Albert Einstein said is, you all know. उन्होंने क्या बताया? पूरी दुनिया, पूरी मानवता इंडिया का रेडी है। विदाउट इंडिया, सो इंडिया की कंट्रीब्यूशन को हम जितने भी शब्द में बात करें, दैट इज नॉट एनफ। एंड इंडिया कितना बड़ा था, जो भारत माँ के रूप में जाना जाता है। और माँ कैसी होती है, माँ की स्वरूप क्या होता है? जब जीरो दिया मेरे भारत ने आगे बढ़ाया। और शांति की बात भी जब हम करते हैं, जब ये शांति तो कब से बोली गई थी, किसी को पता भी नहीं है। तो हम कब से शांति, अनादि काल से, फ्रॉम टाइम मेमोरियल शांति खोज रहे। और आप सब ने ये मंत्र का उद्बोध किया है यहाँ पे, वसुधैव कुटुंबकम, सबने बोला अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसा। ये छोटा चित्त वाला, नैरो माइंडेड लोगों की सोच है। तो ये विशाल विचारधारा देने वाला ये धरती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उलझ गए हैं, हाँ या ना? वो वेदों की आह्वान कहाँ है? और इसीलिए तो स्वामी जी को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? इसके पीछे संसार चला, संसार आगे बढ़ा, हम पीछे रह गए। यस और नो? इसलिए कहना पड़ा विवेकानंद जी को, क्या कहना पड़ा? मैं पश्चिम में आया हूं, क्या ले जाने? अब भौतिकता, भौतिक विकास जो तुम लोगों ने किया, वो मुझे उधर ले जाना जरूरी है। और हमारे में अभी भी स्पिरिचुअलिटी बची है, वो एक्सचेंज करने आया हूं। ये भावना का वो व्यक्त करते थे। विश्व शांति का अभियान है हमारा, कोरिया से उत्पत्ति हुआ। इसका फाउंडर डॉक्टर सन मिंग मून है, वो गुजर चुके हैं। उनकी पत्नी हबजाहान मून है, जीवित है अभी, और उनके नेतृत्व में हमारी शांति अभियान चल रही है। और उस शांति अभियान का मैं भारत का प्रमुख हूं। और उस शांति अभियान के मदद के लिए आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी जजेस बैठे, ये सारे शांति दूत के रूप में हमें मदद करते हैं। और हमारे देश में इसको जब स्थापना किया था, हमारे अभियान को बहुत से लोगों ने इसको मदद किया है। और कार्यकारी प्रमुख के रूप में इस अभियान के अंतर्गत बहुत सारे संगठन है, उसमें से एक है यूनिवर्सल पीस फेडरेशन। और इसमें यूथ फेडरेशन है, इसमें पार्लियामेंट्रियंस है, इसमें एकेडमिशियंस है, सारी मिलाकर हमने। और इवन वाशिंगटन टाइम्स जैसा न्यूज़पेपर इस शांति अभियान का है।
वो अमेरिका में चलने वाली डेली न्यूज़पेपर इस अभियान ने स्थापित किया हुआ न्यूज़पेपर है। Our organization has been doing hundreds and thousands of peace conferences all throughout the world, and this after few months in April, there will be a huge summit in Korea. More than I think 150 nations, at least 200 nations are going to be gathered, and there will be always such kind of efforts. And our founder has even established the peace prize of $10 lakh. Every 2 years we are giving that prize of $10 lakh. And this April also we'll give that prize. And one Indian has already received from Hyderabad. This college की connection है Hyderabad. You know the Venkateswara मंदिर. So हैदराबाद के एक साइंटिस्ट को मिला हुआ है, आपको नाम पता ही नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि हीरे बहुत अंदर छिपे हुए होते हैं और इस देश में बहुत कम लोग जानते हैं जिनको हमने $10 लाख की प्राइज 2015 में दिए हैं, 2015 में। तो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और मेरी भी सौभाग्य है कि मैं इन सभी लोगों से, देश के सभी पद में रहे लोगों से मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का, उनके सानिध्य में पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिलता है। मैंने सभी से आशीर्वाद लिया, मैं देश विदेश लोगों को ले जाता हूं, अपने देश के धर्म के गुरुओं को लेके जाता हूं और मुझे सौभाग्य यह भी मिला 2014 में ही कि 29 दिन में मैं 29 स्टेट में पहुंचा था इस देश शांति यात्रा को करते हुए और देश विदेश के डेलीगेशंस को लेते हुए, जगह जगह आप ही जैसे स्टूडेंट से बात करते हुए, और ये अलग अलग युवाओं को हम देश विदेश के ट्रेनिंग कराते हैं। और पीस क्लब हमारी बहुत ही एक छोटी इनिशिएटिव है, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में यूथ के लिए। कुछ युवा तो जानते भी होंगे, प्रोफेसर प्रमोद, प्रोफेसर देवेंद्र सर, प्रोफेसर चौहान साहब, प्रोफेसर अबिद हुसैन, डॉक्टर मोहित्री, उन्हीं लोगों की नेतृत्व में हम इस पीस क्लब को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे एक सौभाग्य भी मिला कि मैं वैसे राइटर तो नहीं हूं, मैंने एक छोटी सी गीत लिखा, अतुल्य भारत देश मेरा करके, और वो गीत को वर्तमान उपराष्ट्रपति ने रिलीज किया। सीताराम और कृष्ण की, संत और स्वर्गदूतों की, अनगिनत महापुरुषों की। स्वर्ग नगरी महान देश अतुल्य भारत है, ये मेरा देश, ये मेरा देश, ये महान देश, ये मेरा देश। ये कर्म भूमि है बुद्ध की। पूरा गीत आप कृष्णा अधिकारी ऑफिशियल यूट्यूब में देख सकते हैं। मैं विज्ञापन करने सिर्फ नहीं आया हूं, ऑफ कोर्स आपकी मेहरबानी होगी अगर यूट्यूब देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दैट इज अप टू यू। बट मुझे सौभाग्य है कि शांति की बात हजारों साल से वेद से करते आते हुए भी 1945 में यूनाइटेड नेशन बनानी पड़ी, 1920 में लीग ऑफ नेशन आई, फेल हो गई, दूसरा विश्व युद्ध आया, फिर यूनाइटेड नेशन बनी, तब तक भी शांति के विषय में कहीं पढ़ाई नहीं होता था। अभी भी आपके कॉलेज में आपको शांति का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। पीस पढ़ाने का एक्चुअली बचपन से ही, जैसे अलजेब्रा, मैथ, साइंस होती है, एक पीस का सब्जेक्ट होना चाहिए। पीस कैसे होती है, पीस क्या है, पढ़ा देना चाहिए। पीस का ठेका हमने सिर्फ धर्म को दे रखा है। ये पीस का पढ़ाना शुरू ही कब हुआ, ये व्यक्ति को फादर ऑफ पीस स्टडी बोला जाता है। ये व्यक्ति अभी हाल ही में गुजरा, प्रोफेसर योहान गाल्तोंग है इनका नाम। और मैंने क्योंकि ये बात कहां से सीखी, मैंने हाल ही में ड्यूरिंग द कोरोना टाइम मैंने भी अमेरिका से मास्टर डिग्री किया पीस स्टडी में। तो मुझे जब इतिहास पता चला पीस स्टडी का, तो मुझे रोना आया। पीस तो ऑफिशियली पढ़ाया ही नहीं जा रहा। और मैंने प्रोफेसर को बोला, हाउ कम वी टीच पीस ओनली इन द मास्टर डिग्री एंड नॉट इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल? व्हाई ओनली इन द मास्टर डिग्री?
It should be the primary subject of our life. Primary subject. So आने वाले दिन में शायद होगी, मुझे पता नहीं। तो इसी प्रकार से मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि अगर पीस क्लब हमारे आने वाले दिन में यहाँ पे भी बनेगी, और आई लुक फॉरवर्ड, ये जो भी हमारी कंटैक्ट बनी है, ग्रुप बनी है, और इफ यू लाइक वी विल कीप इन टच। आपको भी मौका मिलेगी देश विदेश की अनुभव की, एक्सपोजर की, और शांति को समझकर जो हमारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ के गए हैं उस विरासत को और आगे बढ़ाने की। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं बुलाना चाहूंगा आवर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल प्रोफेसर रवि सर को टू ब्लेस अस विद हिज ब्लेसिंग्स एंड वर्ड्स ऑफ wisdom today to us. Then we will announce the prize, and through his hand, let's welcome our principal of Sri Venkateswara College, Principal Professor Rani sir. Om Namo Venkateshaya Namaha. So at the onset, I take the privilege of welcoming the members, respected members on the dais, and respected students in the audience, to the sacred land of Lord Venkateshwara. And I'm even more happy to welcome you all on this day, which is considered to be the most auspicious day for the beginning of a Gregorian calendar year. It is Vaikunta Ekadasi today, and according to Hindu mythology, it is the day on which the gates to Vaikunt open. And we all know Vaikunt is the abode of Lord Vishnu, and therefore the gates to heaven open on this auspicious day. So yeah, the jargon is a bit complex when they say chief judge. It's not that, I mean, Prashantji told me you look like a chief justice, huh? So yes, it was a jury, and please allow me to underscore this part, that when we were looking at you, we were not trying to judge you. Principal Saab has already told you that each person here who came to this dais, looked into your eyes and communicated something is a true winner.